सावधान, सिद्ध, ब्रह्मनाथ। शांति शांति शांति। Hello students, good afternoon. Welcome back to my class. In last class, I have discussed some importance or advantages of partnership. Okay, so let's do some revision of previous class. What are the advantages or importance of partnership? First one is your easy to form. Second one is more funds. Third one is greater managerial talent. Fourth one is sharing of risk. Next one is promptness in decision making. Next one is relationship between reward and work. Next one is possibility of growth and expansion. Growth and expansion. Okay, so these are the advantages of partnership business. Okay, one advantage. Okay, so first one is what? Easy to form means the partnership business is very easy to start. By an agreement among the partner is needed to start a partnership business. Next one is what? More funds. Okay, here is a partnership business. Partners are A, B and C. Okay, A invests 20,000, B invests 40,000, C invests 60,000. Okay, so from this discussion you should know that what? That partnership business includes more and more funds by adding more and more partners. Okay, so next one is what? Greater managerial talent. Greater managerial talent means what? That different partners have different talent, different experience and different knowledge. So the partners should assign duty according to their talent, knowledge and experience. Next one is what? Sharing of risk. Okay, the loss of the business or the risk of the business are shared among the partners equally. Okay, next was your promptness in decision making. Okay, so the partners meet frequently, regularly, continuously to take prompt decisions. Next one is relationship between reward and work. The partners work more hard to get more and more reward, means more and more profit in the business. The more they work, the more they will get more profit. Then possibility of growth and expansion. There are more possible of in the business for growth and expansions. So these are the advantages of partnership, that is easy to form means easy to start, and partnership business include more funds. Then next one is the partnership business include greater managerial talent because partners have different talents. Then sharing of risk, the risk is shared among the partners. Promptness in decision making means what? That partners meet frequently, regularly, continuously to take prompt decisions. Prompt means quick decisions. Relationship between work, reward and work. The partners the partners do more work. Okay, the partners give more effort to the business to get reward. Reward means profits. Next one is what? Possibility of growth and expansion. Expansion means what?
पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर पॉसिबिलिटी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ठीक है, सो ये है आपका एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. ओके, सो नेक्स्ट वन इज हियर इज द एडवांटेजेस मींस नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस. ओके, disadvantages of partnership business. Disadvantages, demerits and limitations. अब कुछ भी बोल सकते हो. Disadvantages or demerits or limitations etc. of partnership. Okay, so first limitation is unlimited liability. Okay, so first limitation is what? Unlimited liability. Okay, so first of all, what is unlimited liability means? That if there is no sufficient assets in the business for paying the business liability. What I said that, okay, पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे that Mr. A, Mr. B and Mr. C here are the three partners. Okay, unlimited liability means what? If business property is not sufficient to pay the business liability. क्या बोला मैंने? That if the business property is not sufficient to the business to pay the business liability, then the private property of the partners can also be used to pay the business liability. Okay, here is the A, B, C are three partners and they have a partnership business. Okay, name that ABC partnership business. Okay, so the business has total liability of rupees 2 lakh. Okay, what I say that the business has total liability of rupees 2 lakh and the business has total amount of rupees 1 lakh. Okay, so here is the amount of liability was what? 2 lakh and amount of assets is in the business is 1 lakh. Okay, business के पास कितना liability है? 2 lakh. assets कितना है? 1 lakh. Okay, so to pay 1 lakh, business has assets 1 lakh. business के पास assets कितना है? 1 lakh. but liability कितना है? 2 lakh. तो business को और 1 lakh और चाहिए लाइबिलिटी पे करने के लिए, है कि नहीं, जो कि बिजनेस के पास एसेट्स नहीं है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? 3 पार्टनर्स कंट्रीब्यूट देयर एसेट्स मींस देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज. जो बाकी की 1 लाख है, जो बाकी की 1 लाख बिजनेस को चाहिए, तो वो 1 लाख कौन लाएगा? ए, बी एंड सी तीनों मिलके उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज होगा. ठीक है कि नहीं? सो ये है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी डिसएडवांटेजेस कैसे हुआ? that partners are not interested to use their private property. कोई भी पार्टनर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बिजनेस में यूज हो. ठीक है, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस का एक डिसएडवांटेजेस है. ओके, और अप टू सम लिमिट द प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड टू द बिजनेस एंड सो द पार्टनर्स कैन नॉट वांट टू टेक रिस्क. ओके, क्योंकि कोई भी पार्टनर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बिजनेस में यूज हो, इसलिए पार्टनर्स क्या करेंगे? रिस्क लेना नहीं चाहेंगे. इसलिए ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए डिसएडवांटेजेस है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड रिसोर्सेस. Okay, limited resources means what? funds. Okay, assets आप कुछ भी बोल सकते हो. resources का means funds हो सकता है, assets हो सकता है. Okay, so यहाँ पे limited resources क्यों है?
बिजनेस के लिए डिसएडवांटेजेस क्यों है? ओके, द रिसोर्सेज इज लिमिटेड अप टू द प्राइवेट फंड्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनर, सॉरी बिजनेस में पार्टनर। ओके, सो लिमिटेड रिसोर्सेज को यहाँ पे लिमिटेड क्यों लिखा है? क्योंकि द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर लिमिटेड अप टू द प्राइवेट फंड्स ऑफ द पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर इतना कैपेबल नहीं है कि ज्यादा फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास 2 लाख प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल। ओके, क्या बोली मैंने? दैट ए के पास 2 लाख प्रॉपर्टी है कि नहीं? क्या जो ए हमारा जो पार्टनर है, क्या वो पूरा कंप्लीटली 2 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा? नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टनर अपना पूरा कंप्लीटली जितना भी प्रॉपर्टीज है कोई भी अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। इसलिए ये लिमिटेड रिसोर्सेज बिजनेस के लिए डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि दिस रिसोर्सेज इज लिमिटेड अप टू द प्राइवेट प्रॉपर्टीज और प्राइवेट फंड्स ऑफ द पार्टनर। और बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर आल्सो लिमिटेड, दे कैन नॉट बोरो मच अमाउंट और हेवी अमाउंट फ्रॉम द आउटसाइडर। ओके, अगर वो लोग बाहर से लोन लेंगे तो उन्हें ही पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए ये लिमिटेड रिसोर्सेज बिजनेस के लिए डिसएडवांटेजेस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज lack of continuity. Okay, next point is what? Lack of continuity. Okay, lack of continuity. The partnership business has no more time, or the partnership business has no more continuity, because the partnership business is based on the what? Mutual trust. Mutual trust among the partner. Okay, और if इन तीनों पार्टनर में अगर कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया या फिर कोई भी किसका भी डेथ हो गया, तो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस क्या होगा? बंद हो जाएगा, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी है, तो मिस्टर ए क्या हुआ? इंसॉल्वेंट हो गया। सो बी एंड सी उस बिजनेस को कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होगा? लेक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? दैट द पार्टनरशिप बिजनेस ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टनर का अगर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर किसी भी पार्टनर का डेथ हो गया, तो बाकी जो पार्टनर्स है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, और फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि अगर तीनों में अगर कोई ट्रस्ट नहीं रहेगा या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस क्या होगा? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए और टू रन ए पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी ए अंडरस्टैंडिंग और देयर मस्ट बी कोऑपरेशन और देयर मस्ट बी ट्रस्ट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, ये है आपका लेक ऑफ कंटिन्यूटी। तो समझ में आई मैंने क्या बोला? नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, TRUST। ओके, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या? फेथ, बिलीफ। डिस्ट्रस्ट मतलब क्या? ट्रस्ट नहीं है, बिलीफ नहीं है। ओके, सो टू कंटिन्यू ये पार्टनरशिप बिजनेस, ओके, पार्टनरशिप बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए क्या चाहिए? पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ए कुछ करे बी और सी को पता ना चले और बी कुछ करे ए और सी को पता ना चले, ऐसा होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए? ट्रस्ट चाहिए अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स के अंदर ही ट्रस्ट नहीं है, बिलीफ नहीं है, ए छुप के बी से काम करता है और बी छुप के सी से काम कर रहा है, तो क्या होगा? ऐसा जब होगा अगर, तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये है हमारा म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, एक डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज
confidence. Lack of public confidence. Okay. Next one is what? Lack of public confidence. Okay. So there is no rules or there is no regulations to publish accounts of partnership business. What I say that? Publish accounts of partnership business. Okay, so there is no rules and regulation to publish accounts of partnership business. मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी अकाउंट्स है कोई कहाँ पे भी ऐसा कुछ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है कि वो अकाउंट वो लोग पब्लिश करेंगे या फिर वो अकाउंट पार्टनर्स पब्लिक को दिखाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो पब्लिक क्या सोचेगा कि पब्लिक को बिजनेस के एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो पब्लिक को लगेगा कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो हमसे वो लूट रहे हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ आपको, यहाँ पे क्या ABC एंड 3 पार्टनर्स, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिटर कुछ लोन देना चाहता है, ओके, सॉरी कस्टमर, ओके। यहाँ पे जो पार्टनरशिप बिजनेस है, एक कस्टमर आया और उसने पूछा कि आपका लास्ट प्राइस उसे कुछ खरीदना है, गुड्स वगैरह कुछ भी, तो उसने पूछा कि आपका लास्ट प्राइस क्या था, मुझे दिखाइए, मुझे जानना है आपका गुड्स क्या है। तो क्या होगा, ये लोग कुछ भी नहीं दिखाएंगे पार्टनर्स, जो कि आपका रूल्स है, उनका रूल्स है कि दे कैन नॉट पब्लिश अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, है कि नहीं। सो पब्लिक को यही लगेगा कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस लागू हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं, है कि नहीं। सो ये है लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, मतलब पब्लिक का पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, या फिर पब्लिक अच्छे से पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है बिजनेस का, ठीक है। ये है आपका डिसएडवांटेज, दैट इज लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वन इज lack of prompt decisions. What? Lack of prompt decisions. Okay. पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो क्या होता है कि तीनों पार्टनर मिलके रहते हैं, कि नहीं। जो यहाँ पे जो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी पार्टनर्स है, वो तीनों मिलके कोई भी डिसीजन लेंगे, ठीक है। कुछ भी डिसीजन लेना है तो फिर ये तीनों मिलके लेंगे। तो ये क्या हो गया, यार decision making process is time consuming in the partnership, है कि नहीं। So decision making process in the partnership business is what? Time consuming, क्योंकि सब मिलके डिसीजन लेते हैं। तो कुछ भी डिसीजन अगर कोई एक पर्सन लेगा तो जल्दी हो जाएगा, अगर तीनों मिलके लेंगे तो वो लेट होगा, है कि नहीं। बिजनेस का कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो तीनों मिलके लेते हैं, और तीनों का डिसीजन एक होने के लिए, तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक होने के लिए उसे वक्त लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टाइम कंज्यूमिंग इन द पार्टनरशिप। डिसीजन मेकिंग जो होता है प्रोसेस, ये वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है लेक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन। मीन्स पार्टनर जल्दी कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू मिलने के लिए वक्त तो लगता है, तीनों का डिसीजन एक होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तीनों का थिंकिंग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे है लेक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन में क्विक डिसीजंस। मींस पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि तीनों में अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, तीनों में पॉइंट ऑफ व्यू एक होने के लिए, और तीनों का जो भी थिंकिंग है वो एक होने के लिए टाइम लगता है, ओके। और जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे लेक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजंस है, ठीक है। ये है आपका लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज, नेक्स्ट वन इज लेक ऑफ कंटिन्यूटी, नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, नेक्स्ट वन इज लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट वन इज लेक ऑफ प्रॉम्प्ट decisions. Okay, so this is all about today's class.